अलग अलग पार्टीज अटेंड करना, कई रीजन से पार्टीज अटेंड ना कर पाना, पार्टीज के बारे में गॉसिप करना, चलते चलते ऑल ऑफ अ सडन एक हैंडसम से दोस्त का मिल जाना, और उसके बाद भी ढेर सारी गॉसिप करना लोगों के कॉस्ट्यूम्स के रिलेटेड। लेकिन इन सब चटपटी गॉसिप्स को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? So here we are back with another episode of conversation which you cannot afford to miss. So what are you waiting for? Let's get started. Hey, you missed on a great party at Neha's place last night. Why didn't you go? I wasn't really up for it actually because I mean I get along easily with Neha, but when it comes to parties I really don't think so I fit in because a lot of her friends are artists and designers, and when it comes to arts I'm really clueless. Also her parties tend to end at 4 a.m. in the morning. Well, you could have stopped in for a while and slipped away before it got too late. She was wondering where you were. Really? I hope it didn't come across as rude as I was not able to inform her that I'm not coming. Nah, don't worry. She doesn't think that you blew her off or anything. That's good. Did I tell you about the last time I went to one of Neha's parties? No, what had happened? She told me it was a costume party, so I dressed up in a clown suit, but to my surprise, everyone was there wearing normal clothes, and then I realized that she has actually invited us to have a look over the costumes which she has designed for the play. Oh my god. Means everybody else was dressed normally and you were dressed like a clown? Yes. I would have died of embarrassment. I don't think I will ever live it down. Some of her friends still rag me about this. Oh my god, so sad. I can feel for you. Do you remember Rohan, my friend from college? He was there last night. Of course I remember him. How could I forget a guy who passed on for a model? Yeah. Actually, I bumped into him last weekend at the park. Apparently, he has quit his job. Okay. He was sick of being ordered around by his manager. I have always looked up to Rohan for his independence, and I'm not surprised that he wasn't cut out for a corporate job. Anyways, I've got to head out because Okay. I'm meeting Sneha in next half an hour. We are going to Chroma to check out their new electronic sale. Oh, great. Can I tag along? Actually, I'm in the market for a new digital camera. Yes, sure. Come along. Sure. ऑलराइट, आई होप आपने ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय किया होगा। अब इन सब फ्रेजेस का मतलब समझते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो दैट आप उसको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में किस तरह से यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे फ्रेज यूज़ किया है, मन ने जो फ्रेज यूज़ किया है वो है यू मिस्ड आउट ऑन अ पार्टी। यू मिस्ड आउट एक ऐसा फ्रेज है जो हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं जब हम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, उसको लूज कर देते हैं या समहाउ हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। उस टाइम पे हमें ये फ्रेज यूज करते हैं मिस्ड आउट। जब ये बातें हो रही थी कि यू मिस्ड आउट ऑन अ पार्टी, तो उसके बाद में जैस्मिन ने क्या कहा, आई वॉजंट रियली अप फॉर इट। आई वॉजंट रियली अप फॉर इट एक दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है जो हम काफी बार यूज कर सकते हैं अपने रेगुलर कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश बोलते टाइम। आई वॉजंट रियली अप फॉर इट का मतलब क्या होता है? आई वॉजंट रियली अप फॉर इट के दो मीनिंग्स यहाँ पे हो सकते हैं। पहली जो चीज है वो ये कि या तो आप वहां पे जाना नहीं चाहती, मतलब जैस्मिन वहां पे जाना ही नहीं चाहती थी पार्टी में, आई वॉजंट रियली अप फॉर इट। या फिर दूसरी ये चीज हो सकती है कि वो जाना तो चाहते थे बट समहाउ उनकी एनर्जी काफी ज्यादा लो थी। कई बार होता है हमारे साथ इस तरह से कि हम किसी जगह पे जाना तो चाहते हैं पर समहाउ फिजिकली मेंटली हम टायर्ड होते हैं और हम ये डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। होता है ना ऐसा कई बार जब हम बोलते हैं मैं जाऊँ या ना जाऊँ, चलो रहने तो नहीं जाती हूँ। सो उस टाइम पे हम ये फ्रेज यूज करते हैं आई वॉजंट रियली अप फॉर इट। अब इसके अलावा जैस्मिन ने दो और ब्यूटिफुल फ्रेजेस यूज किए यहाँ पे। देन क्या रीजन था कि आई गेट अलोंग नेहा रियली वेल। आई गेट अलोंग विद नेहा रियली वेल मतलब एक ऐसा इंसान जिसके साथ में मुझे बहुत ही अच्छा मेरा कनेक्शन है। तो जैस्मिन ने कहा कि नेहा के साथ तो मेरा बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, आई रियली गेट अलोंग विद हर। पर दूसरा रीजन पार्टी अटेंड ना करने का क्या था, दैट आई डोंट रियली फिट इन विद हर फ्रेंड्स। डोंट रियली फिट इन। फिट इन का मतलब होता है जब हम किसी भी तरह की कोई सोशल सिचुएशंस होती हैं उसमें लोगों के बीच में जब हम कंफर्टेबल फील नहीं करते,
सो उस टाइम पे हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, आई डोंट फिट इन सोशल सिचुएशंस, और मे बी आई डोंट फिट इन कल्चरल सेरेमनीज, आई डोंट फिट इन माई फैमिली फंक्शंस। आप उसको कई तरह से यूज करते हैं। देखिए, मीनिंग अगर पता हो ना कि ये चीज का मतलब क्या है, देन आप उसको बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर पाएंगे। और मेरा इंटेंशन यहाँ पे यही है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से यूज करना है, इसका मीनिंग क्या है, सो दैट आप उसको अच्छे से यूज कर पाए। अच्छा, ये सुन के मन ने उनको क्या जवाब दिया? मन ने जास्मिन से ये कहा, यू कुड हैव स्टॉप्ड इन फॉर अ व्हाइल। स्टॉप्ड इन फॉर अ व्हाइल का मतलब ये होता है कि तुम थोड़ी सी देर के लिए तो आ जाते। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि यार एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो आ जाता, उसको हम बोल सकते हैं स्टॉप्ड इन फॉर अ व्हाइल। इसका मतलब एक छोटा सा विजिट कहीं पे कर लेना। उसके बाद में यू कुड हैव स्टॉप्ड इन फॉर अ व्हाइल एंड देन स्लिप्ड आउट। ये दूसरा एक्सप्रेशन है जो वहां पे यूज हुआ है, जो कि मेरा फेवरेट है। सो स्लिप्ड आउट का मतलब ये होता है कि एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चुपचाप से निकल जाना। सो स्लिप्ड आउट का मतलब ये होता है कि बिना किसी का अटेंशन गैदर किए हुए पार्टी में से या क्राउड में से निकल जाना। ऐसा कई बार हमारे साथ काफी सारे सिचुएशंस में होता है कि जब हम देखते हैं कि यहाँ वहां के कोई हमें देख तो नहीं रहा और हम निकल आते हैं वहां से। सो दैट इज स्लिप्ड आउट। चलिए, तो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जास्मिन ने कहा कि आई होप इट डिडंट कम अक्रॉस एज रूड। डिडंट कम अक्रॉस, और कम अक्रॉस स्पेसिफिकली हम कहाँ यूज करते हैं? कम अक्रॉस मीन्स जब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो इम्प्रेशन क्रिएट करना, छवि बनाना, अच्छी या बुरी, वो कुछ भी हो सकती है। तो जब हम किसी तरीके की इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं या क्रिएट हो जाती है, सो वहां पे हम ये पर्टिकुलर फ्रेज यूज करते हैं, कम अक्रॉस। जिस तरह से जास्मिन ने कहा, आई होप इट डिडंट कम अक्रॉस एज रूड, क्योंकि मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। तो मेरी इंप्रेशन ऐसे तो नहीं पड़ी ना कि मतलब मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ क्योंकि मैं उनको इन्फॉर्म भी नहीं कर रही हूँ। तो मन ने कहा, नो नो नॉट एट ऑल, यू डिडंट ब्लू हर ऑफ, यू डिडंट ब्लू हर ऑफ। ब्लू हर ऑफ एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है यूज करने में, आप उसको जरूर यूज कीजिएगा। मैं अभी आपको इसका मतलब समझाती हूँ कि ये क्या एग्जैक्टली हमें शो करता है, क्या बताता है। ब्लू और ऑफ का मतलब होता है जब सामने वाला ये समझता है कि उसने मुझे रूडली इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे हम नेहा की बात कर रहे हैं, तो मंजीत उनको कहती है, मन उनको कहती है कि ना ना नॉट एट ऑल, यू डिडंट ब्लू हर ऑफ। मतलब नेहा को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि तुमने उनको रूडली इग्नोर किया है, क्योंकि तुमने उनको इन्फॉर्म नहीं किया। सो ब्लू हर ऑफ का मतलब होता है किसी को बहुत ही ज्यादा रूडली, रूड वे में इग्नोर कर देना। अब उसके बाद जास्मिन उनके साथ एक बहुत ही फनी सा एक्सपीरियंस शेयर करती है नेहा की पार्टी का, कि पहले जब एक बार नेहा की पार्टी में वो गई थी तो उनके साथ क्या हुआ था। नेहा की पार्टी में जब वो गए थे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन यहाँ यूज किया है, वो है आई शोड अप इन अ क्लाउन सूट। शोड अप के यहाँ पे दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक होता है कहीं पे पहुंचना, स्पेसिफिकली कहीं पे पहुंचना, या फिर अपीयर होना। ओके, सो अगर मैं ये कहूँ माई कलीग डिडंट शो अप फॉर अ मीटिंग टुडे, इसका मतलब मेरा कलीग आज मीटिंग में नहीं आया, मतलब वो वहां अपीयर नहीं हुआ। दैट इज शो अप और शोड अप। ओके, या फिर अगर मैं कुछ एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ, दैट आई कॉल्ड माई फ्रेंड फॉर अ कप ऑफ कॉफी बट शी डिडंट शोड अप टुडे, मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को कॉफी पे इनवाइट किया पर वो आज नहीं आई। तो अपीयर होना या कहीं पे पहुंचना, ओके, उसको हम बोलते हैं शोड अप। तो यहाँ पे जास्मिन ने क्या बोला कि एक बार नेहा की पार्टी में ऐसे हुआ था दैट आई शोड अप इन अ क्लाउन सूट, मतलब कि मैं क्लाउन सूट में वहां पे पहुंच गई थी। एंड आई विल नेवर एवर लिव इट डाउन, आई विल नेवर एवर लिव इट डाउन, मतलब कि वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स है जब मैं बहुत ज्यादा एम्बैरस हुई थी, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, सब लोग मुझ पे हंस रहे थे, ऐसा एम्बैरसिंग मोमेंट मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। सो आई विल नेवर लिव इट डाउन बिकॉज हर फ्रेंड्स स्टिल रैग मी अबाउट इट। रैग मी अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज को लेके मजाक बनाना या फिर चिढ़ाना।
उसको हम बोलते हैं रैग मी अबाउट। अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन कुछ अलग ही लेवल पे चला जाता है। ओके, जैस्मिन बोलती है, अरे डिड यू रिमेम्बर द गाय, मेरा कॉलेज फ्रेंड रोहन? सो मन बोलती है that yes, of course I remember that guy. How could I forget that guy who can pass for a model? Pass for a model. ये बहुत ही अमेजिंग फ्रेज है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ट्रस्ट मी। पास फॉर अ मॉडल का मतलब ये होता है जब कोई इंसान मॉडल के जैसा दिखता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास फॉर अ मॉडल। तो मन कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे रोहन याद है, कैसे भूल सकती हूँ वो इंसान जो मॉडल के जैसा दिखता है, who can pass for a model. I actually bumped into him last weekend. Bumped into का मतलब होता है जिस इंसान को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो अपने कॉन्वर्सेशन में कह रहे हैं कि वो तो मुझे लास्ट वीक ही पार्क में मिला था। सो आई एक्चुअली बम्प्ड इनटू हिम, मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे मिलेगा, बट आई मेट हिम, मैं उनसे मिली। तो बम्प्ड इनटू का मतलब होता है जब अनएक्सपेक्टेडली, जब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, उम्मीद नहीं रखी हो, सोचा नहीं हो कि ये इंसान हमें मिलेगा और वो हमें मिल जाता है, दिख जाता है। इस पे वो ने कहती है, जैस्मिन मन से कहती है कि तुम्हें पता है यस क्विट हिज जॉब, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो इस पे क्या रिएक्शन होता है मन का? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज ही वाज सिक ऑफ बीइंग ऑर्डर्ड अराउंड बाय हिज मैनेजर। ऑर्डर्ड अराउंड, वो अपने मैनेजर से परेशान था। ऑर्डर्ड अराउंड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड अराउंड का मतलब ये होता है कि जब हमें अननेसेसरी कोई बहुत ज़्यादा कमांड्स देता है। हिंदी में अगर हम स्पेसिफिकली इसको समझना चाहें तो ये होता है कि हम पे हुक्म चलाना या हमें बहुत सारी चीज़ें बोलना, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, कमांड्स देना इन सिंपल लैंग्वेज। सो बीइंग ऑर्डर्ड अराउंड यहाँ पे फ्रेज यूज़ किया है। ऑर्डर्ड अराउंड स्पेसिफिक फ्रेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं उन सिचुएशंस के लिए जब आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स कहीं पे दिए जा रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन में सबकी लाइफ में आती है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। बीइंग ऑर्डर्ड अराउंड बाय हिज मैनेजर, वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने मैनेजर से क्योंकि उसका मैनेजर उसे बहुत सारी कमांड्स देता रहता था या फिर उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करता था। आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू रोहन फॉर हिज इंडिपेंडेंस। लुक्ड अप टू रोहन, लुक्ड अप का मतलब होता है जब हम किसी से इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं या फिर हम उन्हें दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई ऑलवेज लुक अप फॉर सम मोटिवेशन टू माई मदर, मतलब मैं हमेशा अपनी मदर से बहुत सारी इंस्पिरेशन लेती हूँ, प्रेरणा लेती हूँ, मैं उनकी तरफ देखती हूँ। वो होता है लुक अप टू समबडी, लुक अप टू हिम, कि जब हम उनकी तरफ एक इंस्पिरेशन से देखते हैं, एक मोटिवेशन के से हम उन्हें देखते हैं कि हाँ एक रिस्पेक्ट होता है हमारे मन में उनके लिए। तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, इसको हमने कौन से एक्सप्रेशन के थ्रू कहा है। सो इट वॉजंट अ सरप्राइज बिकॉज ही वॉजंट कट आउट फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब। ही वॉजंट कट आउट फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब का मतलब ये भी हो सकता है कि वो कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए बना ही नहीं है। सो ही वॉजंट कट आउट बिकॉज वो उसमें सेट ही नहीं हो सकता, वो उसमें फिट ही नहीं हो सकता, तो ही वॉजंट अ कट आउट फॉर हिज जॉब। एंड देन जैस्मिन कहती है एनीवेज आई एम गोना हेड आउट। हेड आउट का मतलब होता है कि मुझे अब जाना है। वाई? बिकॉज आई एम मीटिंग अप विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड वी आर गोइंग टू चेक आउट द इलेक्ट्रॉनिक सेल। तो मैं अपनी एक दोस्त से मिलने वाली हूँ। आई एम मीटिंग अप। मीटिंग अप का मतलब ये होता है, स्पेसिफिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जब हमने टाइम डिसाइड की हुई होती है, जगह डिसाइड की हुई होती है मिलने की, कि हम कहाँ मिलने वाले हैं, कितने बजे मिलने वाले हैं, तो वो होता है आई एम मीटिंग अप। एंड लास्ट जो सेंटेंस है वो ये है, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सेंटेंस है, नॉट सेंटेंस, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। जब वो मन कहती ओह कैन आई टैग अलोंग। टैग अलोंग का मतलब होता है कि क्या मैं भी आ सकती हूँ आपके साथ,
टैग अलोंग मीन्स जब हम उनसे पूछते हैं कैन आई ऑल्सो कम विद यू, कैन आई ऑल्सो ज्वाइन यू, तो उसका मतलब ये होता है, एक्सप्रेशन हम ये भी यूज कर सकते हैं, कैन आई टैग अलोंग। अगर आपको ये सारे के सारे डायलॉग्स PDF फॉर्म में चाहिए ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्लीज अभी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को जरूर डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट। कॉन्वर्सेशन बार बार सुनिए, शेयर कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।